मजीठिया मामले से जुड़ी बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे हैं। कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट का मजीठिया को जेल में रखने का आदेश है। बता दें कि 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है बिक्रम सिंह मजीठिया को, क्योंकि आज विजिलेंस का रिमांड 4 दिन का खत्म हो रहा था, जिसके चलते आज विजिलेंस ने बिक्रम सिंह मजीठिया को दोबारा से कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश किया जाना था, पर उसके बाद अब कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, तो इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिए हैं, क्योंकि कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को जेल में रखने के आदेश दिए हैं। कई राज्यों में मजीठिया की जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच विजिलेंस की टीम की तरफ से की जा रही है। 25 जून को ये गिरफ्तारी विजिलेंस की तरफ से की गई थी। 14 दिन के अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है बिक्रम सिंह मजीठिया को, क्योंकि ये आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। 25 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद 7 दिनों का विजिलेंस रिमांड विजिलेंस को हासिल हुआ था। उसके बाद 4 और दिनों का रिमांड हासिल करने में विजिलेंस कामयाब हुई थी। आज वो 4 दिन का रिमांड भी खत्म हो रहा था, तो आज कुछ देर पहले ही बिक्रम सिंह मजीठिया को कोर्ट में पेश किया गया। तो अब कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि बिक्रम सिंह मजीठिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। तो कोर्ट ने मजीठिया को जेल में रखने के ये पूरे आदेश दिए हैं। काफिला कुछ देर पहले का, जब बिक्रम सिंह मजीठिया को विजिलेंस की टीम विजिलेंस दफ्तर जो कि सेक्टर 68 में है मोहाली में, वहां से लेकर निकली थी, कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि विजिलेंस दफ्तर के अंदर ही बिक्रम सिंह मजीठिया का जो मेडिकल है वो भी करवा लिया गया। वकील साहब की निकल के सामने आया है पूरा केस की इस वक्त की गल हुई है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ 19 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਦਿਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ BNSS ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਿਊ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। CAs ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਟੀਮ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਗਈ ਸੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 19 ਜੁਲਾਈ ਸਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 1000 ਏਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ 1000 ਏਕੜ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਜੀ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਨਾਭਾ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਯਾਨੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ 2 ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ 7 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
4 ਦਿਨ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 19 ਜੁਲਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਊ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ 14 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਊ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ बिक्रम मजीठिया के वकीलों मुताबिक नपिंदर, इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होनी है। सरकारी वकीलों की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि जो प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग जगहों पर उनकी जांच पड़ताल की गई है। कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बिक्रम सिंह मजीठिया के पास हैं उनसे वो मिसमैच हो रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो और एप्लीकेशन लगा के कोर्ट में 3 दिनों का रिमांड हासिल किया जा सकता है। देखो, बिल्कुल मैं वही क्लीयर किया है कि फिलहाल न्यायिक हिरासत यानी नाभा जेल੍ਹ भेज दिता गया है, पर जे जरूरत पैंदी है तो 3 दिन के लिए उन्होंने रिमांड फिर तो हासिल किया जा सकता है, फिर तो लिया जा सकता है। और ਜਿਹੜੇ दावा किया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट ਜਿਹੜੇ मिले ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਮੈਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ उदो चीज़ां जड़ियां ने बहुत स्पष्ट होंगी। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नपिंदर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज राठी भी लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, बिक्रम सिंह मजीठिया को अब जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में। ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या मजीठिया को सीधे ही यहाँ से न्यू नाभा जेल शिफ्ट किया जाएगा? देखो, बिल्कुल सरबजोत, जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं ये बिल्कुल बैक साइड से तस्वीरें हैं जहां से बिक्रम मजीठिया को निकाला गया है। ये पूरा रोड जो है वो बंद कर दिया गया था, नाभा जेल भेजा गया है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि कोई पीछे ना आए या फिर पीछे की साइड कोई अकाली वर्कर उसके पीछे ना जाए या मीडिया ना जाए, उसको लेकर भी पुलिस ने लांड्रा रोड पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। उसके आगे संगरूर के पास पुलिस फोर्स लगाई गई है। उसके आगे यानी कि नाभा के रोड पर जितनी भी जो अलग अलग एरिया पड़ते हैं वहां पर सभी जगह नाके लगाए गए हैं। यानी कि कोई भी गाड़ी मजीठिया की जो काफिला है, जो जितने भी जो विजिलेंस के ऑफिसर हैं, पुलिस है, उनके पीछे कोई भी गाड़ी नहीं जाए, उसको लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और पूरा रोड, जैसे आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसी रोड से मजीठिया को निकाला गया है। और ये पूरा रोड आप देख सकते हैं, पूरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और अब इसको खोला जा रहा है क्योंकि काफिला निकल चुका है। और बिल्कुल बैक साइड की तस्वीरें हैं जहां से मजीठिया को निकाला गया और सीधा यहां से नाभा जेल लेकर रवाना हो चुकी है पुलिस और विजिलेंस। 14 दिन की न्यायिक हिरासत और नाभा जेल जो है वो यहां पर शिफ्ट किया गया है। और ये पूरा रोड जो है वो बंद कर दिया गया था, यानी कि 5 मिनट पहले ही इस रोड को बंद कर दिया गया था और यहां से ही निकाला गया है। और अभी तक जो जानकारी न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव है कि अलग अलग जगह पर यानी कि अलग अलग रोड्स पर नाके लगाए गए हैं कि कोई भी पीछे ना जा सके, यानी कि कोई भी गाड़ी उनके पीछे ना जा सके, कोई भी मीडिया की गाड़ी उनके पीछे ना जा सके, कोई अकाली वर्कर या सपोर्टर उनके पीछे ना जा सके। पूरी तरह से जो फोर्सेज है वो लगाई गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हालांकि काफी देर बहस हुई है, बहसबाजी दोनों पक्षों में बहसबाजी हुई है। हालांकि रिमांड मांगना चाहती थी, जैसे हमने पहले भी बताया था कि विजिलेंस की तरफ से और भी रिमांड की मांग की जा सकती है। रिमांड की मांग की गई, लेकिन उसके बावजूद जो मजीठिया के वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, उन्होंने विरोध किया। 7 दिन का पहले रिमांड दिया गया था, 4 दिन का उसके बाद रिमांड दिया गया था, जिसमें दिल्ली, हिमाचल, यूपी के, अगर हम बात करें पंजाब की अलग अलग जगह पर जाके छापेमारी की, कई डॉक्यूमेंट जो है वो रिकवर किए गए हैं। और भी जो जांच की जा रही है, जो विजिलेंस के अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है। और इसी रोड से ये पूरा कोर्ट का एरिया है, कोर्ट के बैक साइड का एरिया है जहां से मजीठिया को लेके गया और पूरी ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी गई थी। ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था और मजीठिया को इसी साइड से लेकर जाया गया। हालांकि ये रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जो ये पूरा रोड है। और बिल्कुल सामने कोर्ट है और कोर्ट की ये बैक साइड रोड है जहां से मजीठिया को पहले लाया गया था और उसके बाद अब उसको यहीं से निकालते हुए सीधा नाभा जेल लेके गया है। और पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और पुलिस फोर्स ही
मजीठिया को लेकर यहां से सीधा नाभा जेल रवाना हुई है और पीछे फोर्सेस जो है वो अलग अलग एरिया में लगाई गई है। पहले लांड्रा रोड पर लगाई गई है पुलिस फोर्स, 100-150 मुलाजिम वहां पर लगाए गए हैं। उसके बाद संगरूर रोड पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। कोई भी गाड़ी काफिले के साथ नहीं चलेगी, सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही चलेंगी। कोई मीडिया की गाड़ी नहीं जाएगी, कोई दूसरी पर्सनल गाड़ी जो है उनके पीछे नहीं जाएगी। ये बहुत ही पहले ही क्लियर कर दिया गया है और जो भी सिक्योरिटी ब्रीच करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी पुलिस के ऑफिसर्स की तरफ से साफ तौर पर जो है वो बयान दिया गया है कि कोई भी सिक्योरिटी अगर ब्रीच होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज सुबह से ही आपने देखा कि किस तरह से पूरी पुलिस फोर्स लगाई गई थी। जब मजीठिया को वहां से पेश किया गया, यहां पर लाया गया, पुलिस पूरा कोर्ट जो है वो पूरी तरह से छावनी जो है वो तब्दील किया गया था और